When is a parent born? When your world changes in a moment? Nani? Or when the moment is celebrated by all? When you start learning again? Or with a new role? Is it your child's first breath? Or is it just a feeling? Parents are born when they fulfill a responsibility. Your child's umbilical cord blood can provide protection from 80 life-threatening diseases. Keep it safe with Asia's largest stem cell bank. Cord Life. One chance, one choice. Hi everyone, welcome to another webinar of Cord Life. Today we're going to talk about importance of breastfeeding. So we'll be discussing about what are the myths and facts that will be taken up by Dr. Beenal. I'll be covering up what are the right procedures and postures you should maintain. So to begin with, we have on the platform a very renowned doctor, and I would say she's like a celebrity in the field, and so she has gone through so many awards. And she's a representative of Foxy from Baroda. She has been a past president of Box in 2016 and 17. She has written so many scientific papers. She has been awarded by CM Sri Rupanji for Women Health Awareness Activities. She's been Pride of Baroda Healthcare Icons Award by Times of India. She has been awarded as Inspiring Gynecologist of West India by Economic Times. And she has been given Best Video Presentation at ISGE Conference Ahmedabad 2020. Her key interest is in laparoscopy, and she has been practicing in Dwarkesh Hospital, Baroda since 20 years now. The most good thing which I like she is Fit and Glam pageant winner. A very warm welcome to ma'am, and I think every woman would be inspiring, to hear your words, and over to you, ma'am. Thank you so much, dear Mandakini. Thank you for those words. Please, ma'am. Sorry. Yeah. Good afternoon, everybody, and welcome to this, the new normal. That is, virtual is the new normal, and I'll be speaking in Hindi and English mix, so that it will be more explanatory to you. So, आप सबका इधर स्वागत है, and actually, you will be really surprised कि हम इस बारे में क्या बात करना चाहते हैं या क्या जरूरी है. बट यस, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में जानकारी लेना बहुत ही जरूरी है, और इस बारे में हमारे आज बहुत विशेष गेस्ट हमारे साथ हैं. सो पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगी फॉर द वेलकम एड्रेस डॉक्टर अर्चना द्विवेदी जी. कैन आई हैव हर सीवी प्लीज? Dr. Archana is a very close, my best friend from Baroda, and she is a gynecologist. And besides a gynecologist, much more than that, I call her a dancing swan, because बहुत ही gracefully वो dance करती हैं, तो co-curricular activities में भी वो बहुत आगे हैं. स्टर्लिंग हॉस्पिटल में अर्चना जी काम करती हैं, और साथ में उनका दूसरा हॉस्पिटल मानव हॉस्पिटल भी है. And she is a specialist and has high interest in high-risk pregnancies and complicated surgeries. She's been a faculty for adolescent counseling and menstrual hygiene awareness and anemia eradication activities. इनको काफी सारे अवार्ड मिल चुके हैं, काफी सारे कॉन्फ्रेंसेस में इन्होंने टॉक दी हुई हैं, एंड शी इज अ मिड लाइफ चैरिटी वर्क अवार्ड भी मिला है. एंड ओवरऑल शी इज अ वेरी स्वीट, वेरी अप्रोचेबल पर्सन. सो एंड शी इज ऑल्सो अ वेरी एक्टिवली वर्किंग इन वेरियस फॉक्सी कमिटीज, ब्रेस्ट कमिटी, एडोलेसेंट हेल्थ कमिटी एंड सेफ मदरहुड कमिटी. सो आइए सुनते हैं डॉक्टर अर्चना जी से. फॉर द वेलकम एड्रेस डॉक्टर अर्चना द्विवेदी प्लीज. थैंक यू डियर बीनल. पहले तो मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी, बिकॉज ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए पब्लिक को सब जानते हुए भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं पता है. बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे भ्रम है कि कैसे करना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग के फायदे नुकसान, और बहुत सारे ऐसी चीजें जो मुझे पता है. आज बहुत ही एमिनेंट स्पीकर्स हमारे साथ में है, डॉक्टर बीनल हैं, डॉक्टर कल्याण जुड़े हुए हैं,
डॉक्टर मंदाकिनी हैं जो पब्लिक अवेयरनेस कमेटी के हैं, और ये टॉपिक्स बहुत अच्छे सेलेक्ट करके आज का ये शाम का लेक्चर डेफिनेटली बहुत ही प्रॉमिसिंगली बहुत अच्छा होने वाला है। और मैं सबका आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने इतना बिजी शेड्यूल से भी टाइम निकाल करके इस सब्जेक्ट को एड्रेस करने के लिए सोचा। ब्रेस्ट फीडिंग अपने आप में एक, शुरू में सुनने में हर एक को प्रॉब्लम लगता है कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने से पेन होता है, अपनी रात की नींद डिस्टर्ब होती है, डे टू डे एक्टिविटीज डिस्टर्ब होती है, हम खुल के जी नहीं सकते, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें जो मन को परेशान करती रहती हैं। पर उसके अगेंस्ट ब्रेस्ट फीडिंग के फायदे कितने सारे हैं वो हमें अपने स्पीकर से सुनने को मिलेगा। एंड बिलीव मी, मैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ बड़ौदा ऑब्स्टेट्रिक सोसाइटी और हम सब लोग जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, रोज की इतनी डिलीवरीज कराते हैं, प्लस हम लोग खुद भी मदर्स हैं, अपने आप को फिट बनाए रखने के लिए, अपने आप को एक्टिव बनाए रखने के लिए और अपने आप को एक स्पेशल बॉन्ड महसूस करने के लिए अपने बच्चों के साथ, क्योंकि हमारा बच्चा कब रो रहा है और किस कारण से रो रहा है अगर वो उसकी माँ नहीं समझ सकती तो शायद कोई और नहीं समझ पाएगा। तो वो बॉन्डिंग कहाँ डेवलप होती है? जब वो आप उसको फर्स्ट टाइम फीड कराते हैं। तो अगेन मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी, ये बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है और मेरे दिल के बहुत करीब है। और हमारे साथ बड़े एमिनेंट स्पीकर्स हैं, डॉक्टर मंदाकिनी, डॉक्टर बीनल हैं, डॉक्टर कल्याण हैं, एंड हम उनको सुनना चाहेंगे ताकि जो भी भ्रम है और जो भी मतलब मन में एक कंफ्यूजन बना रहता है उसको दूर करने के लिए आज की इवनिंग हमारे लिए कारगर सिद्ध हो। और कॉर 3 कनेक्ट के माध्यम से हम लोग ये कर रहे हैं। आई थिंक कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द होल टीम, एंड आई थिंक विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, बीनल विल लाइक टू लिसन टू यू। Yeah, sure. Thank you so much, Dr. Archana Dwivedi ji. And now I would request Dr. Kalyan sir, Dr. Kalyan Barmade. I would like to introduce Dr. Kalyan sir. He has joined us. He is the chairperson of the Public Awareness Committee of FOGSI. FOGSI जो हमारी है वो Federation of Obs and Gynec Societies of India. मतलब पूरे भारत में 30,000 से भी ज्यादा गायनेक डॉक्टर हैं जिनकी ये फेडरेशन है, और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है, दैट इज पब्लिक अवेयरनेस कमेटी। बिकॉज हेल्थ में सबसे पहली चीज जो आती है दैट इज अवेयरनेस, मतलब जागरूकता, राइट। और उस जागरूकता लाने के लिए जो कमेटी बताई गई है उसके चेयरपर्सन डॉक्टर कल्याण बरमदे जी हैं। डॉक्टर कल्याण इज ऑल्सो बीन द ट्रेजरर ऑफ IAGE. ही इज द जोनल कोऑर्डिनेटर ऑफ MOGS, मैनेजिंग कमिटी मेंबर ऑफ महाराष्ट्र ISAR, and the immediate past president of Latur Obs and Gynec Society. So welcome Kalyan ji, and we would like to hear a few words from you, especially about breastfeeding awareness. आपने कल्याण जी अगस्त में बहुत सारे वेबिनार्स और एक्चुअल शोज वगैरह किए हैं अवेयरनेस के लिए, तो थोड़ा हमें बताइए इस बारे में। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर बीनल जी, आपने ये इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है, आज की सब महिलाओं के लिए बहुत बहुत अच्छा कारगर हो जाएगा, ये मैं अपेक्षा रखता हूँ। आपको सबको पता है ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस वीक होता है 1 to 8 अगस्त में, जब हम पूरे भारत भर में महिलाओं को ब्रेस्ट फीडिंग क्यों करना चाहिए इसके बारे में अवेयरनेस दिलवाते हैं। जो महिलाएं गांव में यानी रूरल इंडिया में रहती है वो काफी सारा टाइम ब्रेस्ट फीडिंग को दे पाती है, लेकिन जो शहर में रहने वाली या सो कॉल्ड मॉडर्न महिलाएं वही ब्रेस्ट फीडिंग कम करती है, और उसके वजह से उनको भविष्य में कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं। जैसा अगर आप अच्छा ब्रेस्ट फीडिंग करें तो बच्चों में एलर्जी का प्रमाण बहुत कम होता है, बच्चों में अस्थमा का प्रमाण कम हो जाता है, बच्चों में चाइल्डहुड कैंसर का प्रमाण एकदम कम हो जाता है, बच्चों में आगे जाके टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज होने के आसार कम हो जाते हैं। बाद में बच्चों को जो क्रोन्स डिसीज बोलते हैं, जो अपना डाइजेशन के रिलेटेड कुछ बीमारियां होने के आसार कम हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी इलनेसेस के प्रमाण कम हो जाते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बच्चा अच्छी तरह से बोलना सीख जाता है और मुख के या दांत के प्रॉब्लम बहुत कम हो जाते हैं। तो इतने सारे बेनिफिट बच्चों को है, तो आप ब्रेस्ट फीडिंग से ना दूर रहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग करती है कम से कम 9 महीने और ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक, उनमें ब्रेस्ट कैंसर का प्रमाण भी बहुत कम होता है, ऐसे सब रिसर्च में जाना गया है। तो मैं सभी महिलाओं को ये जानकारी देने के लिए डॉक्टर बीनल जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आप सबको जमा किया है, और जो अवेयरनेस प्रोग्राम वो करा रही है
बहुत ही स्तुत्य प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके लिए उनको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर कल्याण जी, थैंक यू सो मच, आपके बिजी शेड्यूल से आपने टाइम निकाला। थैंक यू। सो नाउ वी वुड लाइक टू स्टार्ट विथ आवर सेशन फॉर टुडे। एंड कल्याण जी ने एकदम सही कहा है नो कि कई बार मतलब ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें शायद गांव की महिलाएं शहर की महिलाओं से ज्यादा आगे हैं। या कैन यू सी माय स्क्रीन नाउ? यस मैम। या ओके, थैंक यू। सो आज हम ये क्यों मतलब इजंट दिस समथिंग वेरी फिजियोलॉजिकल या वेरी नेचुरल कि हम सब मैमल्स हैं। मैमल्स मतलब कि स्तनधारी प्राणी, और कुदरत ने हमें स्तन किसी पर्टिकुलर कारण से दिए हैं। हमें स्तन जो दिए हैं वो हमारे ऑफस्प्रिंग्स मतलब हमारे बच्चों के पोषण के लिए दिए हैं, टू फीड एंड नर्स आवर यंग वंस, राइट? सो दिस इज समथिंग वेरी नेचुरल, वेरी फिजियोलॉजिकल, मतलब इसमें कोई सिखाने वाली बात नहीं है, ये कुदरती चीज है जो कुदरती ही आनी चाहिए, राइट? एंड सही कहा है कि ब्रेस्ट मिल्क इज द एलिक्सर ऑफ लाइफ, मतलब जीवन का जो अमृत है, ये स्तनपान जो है वो जीवन का अमृत है। और जैसे अभी डॉक्टर कल्याण ने बताया था कि हम वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट करते हैं अगस्त के पहले हफ्ते में, और इसीलिए हमने अगस्त में यही थीम चुना हमारे वेबिनार के लिए। और ये जो वेरियस स्लोगन्स दिए गए हैं आपको स्लाइड्स पे जो दिख रहे हैं, ये स्लोगन्स हर साल वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक पे दिए जाते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग इज अ की टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर दूसरे साल दिया गया एम्पावर पेरेंट्स एनेबल ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि कई बार क्या हुआ जब मतलब खास करके जब महिलाएं काम करने लगी, करियर ओरिएंटेड फीमेल होने लगी, तब कई बार वो महिला बच्चों से और घर से दूर जाने लगी। उस कारण नवजात बालक को और खास करके 1 ईयर से छोटे बच्चों को स्तनपान मिलने में तकलीफ होने लगी, राइट? सो दैट इज व्हाई इट वाज रिटन दैट एम्पावर पेरेंट्स एंड एनेबल ब्रेस्ट फीडिंग। और काफी सारी वर्क प्लेसेस पे ऐसा कहा गया है कि नाउ यू शुड मेक क्रेचेस, और मतलब बच्चे को भी आप ले जा सको, बच्चे को रख सको, वैसा पालना और ब्रेस्ट फीडिंग कर सको। इवन पब्लिक प्लेसेस जैसी बड़ी प्लेसेस होती है एयरपोर्ट वगैरह, वहां भी गवर्नमेंट ने ब्रेस्ट फीडिंग करने के लिए प्राइवेट और बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं, थिएटर्स वगैरह, वहां भी आप अच्छे से निसंकोच स्तनपान करा सके, उसके लिए प्राइवेसी वाले रूम्स बनाए गए हैं। और जब प्राइवेसी की बात आती है तो मैं कहती हूँ कि इसमें कोई भी शर्माने या झिझकने वाली या टैबू वाली बात नहीं है, बिकॉज आप देखेंगे तो नेदरलैंड्स, फिनलैंड, जहाँ पे फीमेल्स बहुत अधिक मात्रा में लीडरशिप स्टेज पे हैं, जहाँ में प्रेसिडेंट भी फीमेल्स हैं, वहाँ पार्लियामेंट सेशन में, चालू पार्लियामेंट में भी वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हैं, वहाँ की मिनिस्टर्स वगैरह जो लेडी मिनिस्टर्स हैं। तो इसमें कोई भी शर्माने वाली बात नहीं है, राइट? एंड अगेन द लास्ट ईयर का जो स्लोगन था वो था सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दियर प्लैनेट। तो हम आगे चल के देखेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग हेल्थ के ऊपर कितना ज्यादा इम्पैक्ट लाता है। एंड इस साल 2021 का स्लोगन है प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये इसलिए है शेयर्ड, मतलब इट इज नॉट ओनली द मदर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिर्फ माँ की जवाबदारी, स्तनपान कराना सिर्फ माँ की जवाबदारी नहीं है, पर माँ के साथ साथ उसके हस्बैंड मतलब बच्चे का जो पिता है, बच्चे मतलब उनकी जो एंटायर फैमिली है, उन सबकी जवाबदारी है कि माँ को इतना समय और टाइम दिया जाए, प्राइवेसी दी जाए और रिलैक्सेशन टाइम दिया जाए जिसमें वो बच्चे को आराम से स्तनपान करा सके। उस पर इतनी सारी जवाबदारियां ना थोपी जाए कि उसको स्तनपान कराने का भी समय ना हो। और इस शेयरिंग में हम लोग भी पीछे नहीं हटना चाहते। हम मतलब डॉक्टर्स जो हम मतलब वी आर दी गार्डियंस ऑफ द फीमेल हेल्थ, तो ये भी एक हेल्थ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है। तो वी ऑल्सो वुड लाइक टू शेयर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने के लिए ही आज मैं, डॉक्टर अर्चना, डॉक्टर कल्याण, डॉक्टर मंदाकिनी, हम सब आपके साथ जुड़े हैं। आप सब जो हमें सुन रहे हैं, आप सब प्रेग्नेंट लेडीज हैं, सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज यू आर हैविंग द बेस्ट गिफ्ट ऑफ नेचर, दैट इज यू आर गोइंग टू गिव बर्थ टू मिरेकल ऑफ लाइफ। और आप में से कुछ ऑलरेडी जस्ट मतलब मोस्ट ऑफ आर वुड बी मदर्स एंड कुछ आर न्यू मदर्स। एंड न्यू मदर्स में यू नो आई मीन इट इज रियली अ कंफ्यूजिंग सिनेरियो, बिकॉज ऑब्वियसली आप ऊपर से तो बहुत ही खुश हो और सब लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे हैं, पर काफी सारी आपके अंदर कंफ्यूजन भी है, काफी चीजें आपको समझ नहीं आ रही हैं, स्पेशली इफ यू आर अ फर्स्ट टाइम मॉम। तो वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। हम लोग आपके साथ ही हैं और आपको सही दिशा में सही डायरेक्शन दिखाना चाहते हैं। नाउ कमिंग टू द, आई विल डायरेक्टली गो टू द टॉपिक अबाउट द ह्यूमन मिल्क और उसमें कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम का मतलब क्या है कि शुरुआत के दिनों में जब आपका डिलीवरी होती है और तुरंत आप देखेंगे तो ये कुदरत ने मतलब बच्चे के लिए ऑलरेडी उसमें कुछ तैयारी करके भेजी हुई है,
और शुरुआत के दिनों में जो दूध आता है वो थोड़ा गाढ़ा पीले कलर का होता है। कुछ लोग उसको चेक बोलते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि ये कुछ पक गया है, इन्फेक्शन है, पर नहीं, ये कोलेस्ट्रम एक स्पेशल प्रकार का दूध है। एक्चुअली आप लोग आजकल वैक्सीन के बारे में सब लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं। कोविड के सिनेरियो में एवरीबडी इज अवेयर कि वैक्सीन हमारा रोग प्रतिकार करता है। तो मैं मतलब ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, इट इज नॉट एन ओवर स्टेटमेंट इफ आई से दैट कोलेस्ट्रम इज द फर्स्ट वैक्सीन ऑफ द चाइल्ड। मतलब बच्चे के लाइफ में सबसे पहला जो रोग प्रतिकारक शक्ति उसे मिलती है वो माँ के पहले दूध मतलब कोलेस्ट्रम से मिलती है, जो इनिशियली शुरुआत के 2-3 दिनों में माँ के निपल में से आता है। और ये जो दूध होता है वो गाढ़ा होता है, इसमें प्रोटीन की मात्रा, इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा ज्यादा होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स और इम्यूनिटी बूस्टर्स होते हैं। इसमें फैट और कार्बोहाइड्रेट कम है, पर इसमें लैक्टोबैसिलस बिफिडस फैक्टर है, इसमें एंटीबॉडीज हैं। ये बेसिकली एकदम बोलते हैं ना कि कस्टमाइज किया हुआ डिजाइनर मिल्क है, जो इनिशियली बच्चा जब जन्म लेता है तो अभी उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम इतनी अच्छे से मैच्योर नहीं हुई है, तो उसके लिए ये एकदम आइडियल दूध है। इस दूध का कंपोजिशन बच्चों को जो जरूरत है उसके लिए एकदम सही तरह से नेचर ने बनाया हुआ है। सो वी कैन नॉट क्वेश्चन नेचर कि शुरुआत में इतना ऐसा दूध क्यों है। मैच्योर ह्यूमन मिल्क कुछ दिनों बाद डिलीवरी के 5 से 7 दिन के अंदर जो दूध आने लगता है वो थोड़ा पतला होता है, थोड़ा पानी टाइप का होता है, और इसके अंदर लिनोलेक एसिड, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट मात्रा में होते हैं, जो बच्चे की बुद्धि के विकास, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका फैट कंटेंट एंड कार्बोहाइड्रेट, लैक्टोज कंटेंट भी बढ़ता है। साथ में DHA भी है, जो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ द ब्रेन टिश्यू। और आप लोगों को पता होगा, हम लोग आपको जो दवाइयां देते हैं उसके अंदर भी मल्टीविटामिन के साथ हम DHA देते हैं, विच इज वेरी गुड, जो बच्चों के आईज मतलब रेटाइना डेवलपमेंट और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। और डिलीवरी के बाद भी ये DHA वाली कैप्सूल्स भी हम कंटिन्यू रखते हैं, और आपके दूध के द्वारा ये बच्चे को मिलता है, तो आपके बच्चे का बुद्धि का विकास बहुत अच्छा होता है। और यहाँ ये बहुत ही नोट करने वाली बात है कि ह्यूमन मिल्क सब्स्टिट्यूट मतलब कि फॉर्मूला फीड या डब्बे का जो पाउडर है उसके अंदर DHA और कोलेस्ट्रॉल जो जरूरी है बच्चे के लिए वो नहीं होता है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, कई बार माँ जब बच्चे को दूध पिलाने लगती है तो एक स्तन में से दूध पिला रही है, तब दूसरे स्तन में से दूध निकलना शुरू हो जाता है। तो कुछ माँ गलती करती है कि एक स्तन में से निकाल के बच्चे को तुरंत दूसरे स्तन पे लगा देती हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको एक स्तन को पूरा खाली करना है, बिकॉज फोर मिल्क और हाइंड मिल्क, फोर मिल्क मतलब शुरुआत में जो आने वाला दूध है उसके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा होती है, विटामिन और प्रोटीन, सो बच्चे की प्यास छिप जाती है, थर्स्ट जो बोलते हैं वो शांत हो जाती है। बट जो पीछे का मिल्क है, एंड में स्तन में से जो खाली होता है हाइंड मिल्क, उसके अंदर इट इज अ हेवियर मिल्क, उसके अंदर लिपिड और कार्बोहाइड्रेट के प्रमाण ज्यादा है। अगर बच्चा पूरा मिल्क पिए, फोर मिल्क एंड हाइंड मिल्क, तो वो अच्छे से सेटिस्फाई होता है थर्स्ट एंड हंगर दोनों के मामले में, और बच्चे का वेट गेन एंड न्यूट्रिशन अच्छा मिलता है। दिस इज अ कंपैरिजन, आप देख सकते हैं कोलेस्ट्रम और मैच्योर मिल्क के बीच में कंपैरिजन किया गया है, और जैसे क्वाइट ऑब्वियस है कि जो उसके सिक्रेटरी IgA मतलब जो रोग प्रतिकारक शक्ति वाले फैक्टर्स हैं वो कोलेस्ट्रॉल में ज्यादा है। इसलिए आप ये जरूर सोचिए कि अगर आप शुरुआत के दिनों में बच्चे को दूध नहीं पिलाते हैं तो बच्चे को बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस हो रही है, द इम्यूनिटी, रोग प्रतिकारक शक्ति, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हाट आर द ग्लोबल रिकमेंडेशंस? पूरे विश्व में ये रेकमेंड किया गया है कि बच्चों को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड किया जाए फॉर 6 months मिनिमम, 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माता का दूध, माँ के दूध के सिवाय कुछ भी नहीं, इवन पानी भी नहीं। कितनी भी गर्मी हो बच्चे को एक्स्ट्रा पानी की जरूरत नहीं है। स्तनपान के अंदर 80-90% वाटर होता है जो बच्चे के लिए इनफ है। सो बाहर से आप बच्चे को पानी भी ना दे, बाहर का दूध या शहद ये वगैरह कुछ ना मतलब चटाइए। और न्यूट्रिशनली ये बच्चे के लिए सही मात्रा में एकदम संतुलित है, वेल बैलेंस्ड है, और बच्चे को कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री फूड की जरूरत 6 महीने के बाद ही है। तो वीनिंग आप 6 महीने बाद ही शुरू करें, और कम से कम 1 साल तक दूध पिलाएं, और हो सके तो एटलीस्ट उसके आगे भी थोड़ा पिलाएं। तो जो आपने सुपरमैन तो सुना होगा, तो ये हमारा सुपर बेबी है, एंड व्हेन द बेबी इज ब्रेस्ट फेड इट शोज, राइट, मतलब बच्चे की हेल्थ में, तंदुरुस्ती में बहुत ही एविडेंटली पता चल जाता है कि ये बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग मिला है। तो बच्चे को क्या फायदे हैं ब्रेस्ट मिल्क के? वील जस्ट लाइक टू समराइज। इट इज अ कंप्लीट फूड फॉर द फर्स्ट 6 months.
इट इज परफेक्ट इन द न्यूट्रिशन। ब्रेस्ट फीड वाले बच्चों का IQ, इंटेलिजेंट कोशेंट जो है, दिमाग है, वो ज्यादा अच्छा मतलब रहता है। इमोशनल बॉन्डिंग, जैसे डॉक्टर अर्चना जी ने हमें बताया था कि माँ और बच्चे के बीच का जो एक इमोशनल रिश्ता है, बंधन है, बॉन्डिंग है, ये ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। और ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो इन्फेक्शन से बचाता है, बिकॉज डायरेक्टली माँ के स्तन में से बच्चे को मिल रहा है, तो ये दूध बाहर नहीं पड़ा है, इसके अंदर कोई बैक्टीरिया, जर्म्स नहीं है। बॉटल के अंदर दूध पिलाने की वजह से कई बार बच्चों को इन्फेक्शन, अगर हाथ गंदे हैं, बॉटल गंदा है, उसमें कोई जर्म्स, बैक्टीरिया बॉटल या निप्पल पे है, वो स्टेरिलाइज नहीं हुआ है प्रॉपरली, तो बच्चे को डायरिया वगैरह की संभावना और चेस्ट इन्फेक्शन, खांसी, सर्दी, न्यूमोनिया, ये सब संभावना बढ़ जाती है। और क्रोनिक डिसीजेस, मतलब तब नहीं समझ आएगा, लेकिन बच्चा जब बड़ा होता है तो दूसरी जो बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज, मेदस्वी पना, जो ओबेसिटी बोलते हैं, उन सब चीजों में से भी आप बच्चे को बचा सकते हैं अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हैं। और ब्रेस्ट मिल्क जो है, इट इज इजीली डाइजेस्टेबल फॉर द बेबी। अच्छा, हमें सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ बच्चे को ही फायदे हैं, इवन माँ को भी स्तनपान कराने से बहुत सारे फायदे होते हैं। सो सबसे पहला फायदा कि पोस्ट डिलीवरी जब बच्चे को आप दूध पिलाते हैं तो ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है, उसके कारण जो बच्चेदानी है वो अच्छे से सिकुड़ जाती है, संकुचित होती है, और बहुत ज्यादा एक्सेसिव ब्लड लॉस, मतलब जो खून बहुत ज्यादा निकल जाता है, रक्तस्राव, वैसा नहीं होता है। तो इट रिड्यूसेस द पोस्ट डिलीवरी ब्लीडिंग एंड एनीमिया। इट हेल्प्स डिले नेक्स्ट प्रेगनेंसी। जैसे आपने काफी लोगों से सुना भी होगा, देखा भी होगा कि कई बार जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो कई बार मेंसेस नहीं आता है कुछ महीनों तक, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, कुछ लोगों को साल तक भी माहवारी नहीं आती है, और ओव्यूलेशन मतलब स्त्री बीज फूटना भी थोड़ा डिले होता है, उस कारण आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस भी कम रहते हैं। पर एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू रिमाइंड कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रासेप्शन नहीं है। तो आप डेफिनेटली अपने गायनेक को मिलके डिलीवरी के 1.5-2 महीने बाद आप गर्भ निरोध के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहेंगे, ये जरूर उनसे समझ लीजिए। मतलब इस भ्रम में ना रहें कि अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो प्रेगनेंसी 100% नहीं रहेगी, ऐसा नहीं है। प्रेगनेंसी रहने की संभावना है, कम है लेकिन है, राइट। सो ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प्स टू डिले द नेक्स्ट प्रेगनेंसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है मैं आपको बताना चाहूंगी कि ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर और ओवेरियन कैंसर, ओवरी मतलब अंडाशय का कैंसर, इन दोनों कैंसर की संभावना कम हो जाती है अगर आप बच्चे को स्तनपान कराती हैं। तो ये बहुत ही चमत्कारिक बात है और एक्चुअली कुदरती बात है, क्योंकि कुदरत ने हमें स्तनपान कराने के लिए दिए हैं। तो अगर आप उनको वो कार्य करने देंगे जिसके लिए उनको दिया गया है, तो आपको स्तन कैंसर होने की संभावना कम होती है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो लेडीज को अच्छी लगेगी, इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू लूज दैट एक्सेस वेट। जो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आपके अंदर से जो कार्ब्स और लिपिड्स जो हैं वो बच्चे को मिल रहे हैं, और आपके अंदर जो कारण बिना चर्बी जमा हुई है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। इमोशनल बॉन्डिंग की हमने ऑलरेडी बात की, और सबसे बेस्ट चीज है कि इसके लिए कोई तैयारी की जरूरत नहीं है। मदर कैन फीड द बेबी एनी टाइम, इसके लिए कोई प्रायर प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। और बेनिफिट टू द सोसाइटी, तो पूरे समाज को क्या फायदे हैं स्तनपान से। मतलब अगर माता स्तनपान कराती है तो बच्चे बीमार कम पड़ते हैं। तो अगर मदर वर्किंग है और मतलब हस्बैंड ऑब्वियसली वर्किंग है, तो बच्चा हेल्दी है तो हस्बैंड वाइफ दोनों की छुट्टियां कम पड़ेंगी, तो एब्सेंटिज्म विल बी लेस। इकोनॉमिकली बहुत अच्छा है, बिकॉज एक्स्ट्रा और कोई खर्चा नहीं करना है, क्योंकि फॉर्मूला फीड वगैरह का अगर आप खर्चा निकाले तो आराम से फॉर्मूला फीड के क्वांटिटी के हिसाब से, बच्चा कितने वजन का है उसके हिसाब से 2-4 हजार पर महीने का खर्चा मिनिमम हो जाता है अगर आप बच्चे को फॉर्मूला फीड दे रहे हैं तो। और साथ साथ में अगर बच्चा बीमार पड़ेगा तो उसके दवाई के खर्चे, राइट। तो ये सब चीजें भी मतलब आपको सोचनी है। सो अगेन ये एक और स्लोगन है, ब्रेस्ट मिल्क इज द बेस्ट मिल्क। एंड सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग में हर्डल्स क्या है, कई बार फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो ये बहुत जरूरी है कि मतलब मदर सपोज 1.5-2 महीने हो गए डिलीवरी के, फिर मदर पे पूरे घर की टोटली जवाबदारी सौंप दी जाती है कामकाज की। लेकिन ये जरूर सोचना है कि माँ बच्चे को दूध पिला रही है, दिन में कम से कम 10-12 बार दूध पिलाना है, तो उसके लिए उसे 5-6 घंटे का टाइम स्पेयर अलग चाहिए। तो इस समय फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल का सपोर्ट जरूरी है। अगर मदर कंफ्यूज्ड है, उसे कुछ तकलीफ है, नहीं ब्रेस्ट फीडिंग नहीं आ रहा है, तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल हेल्प कर सकते हैं।
और कई बार मदर का खुद का शक, खुद का झिझक कि शायद मेरा मिल्क कम है, मुझे दूध कम आ रहा है, बच्चे का पेट नहीं भर रहा है, तो कई बार दैट कैन बी अ रीजन फॉर नॉट गेटिंग एडिक्वेट ब्रेस्ट मिल्क। सो इम्पोर्टेंट डूज क्या है कि सबसे पहले जन्म से हो सके तो आधे घंटे के अंदर अंदर, मतलब हम लोग तो हमारे यहाँ लाइक वी आर द बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल्स, तो हमारे यहाँ तो ये पॉलिसी है कि जैसे ही बच्चे का कॉर्ड कटिंग वगैरह हो जाता है, कॉर्ड टाइंग हो जाता है, इमीडिएटली हम बच्चे को मदर की ब्रेस्ट पे ले लेते हैं। मतलब इवन सीजर है तो बच्चे का मतलब मदर का पेट अभी सिल रहे हैं तो भी दूसरी तरफ ब्रेस्ट फीडिंग शुरू हो जाता है। नॉर्मल डिलीवरी है, सपोज नीचे टांके में ले रही हूँ, तो भी हमारी जो नर्स है, पीडियाट्रिशियन है, वो तुरंत एक बार कॉर्ड टाई हो जाए, नाड़ टाई हो जाए, उसके बाद बच्चे को अच्छे से पोंछ के ड्राई टॉवेल में रैप करके तुरंत ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर देते हैं। तो जन्म के 1 घंटे से कम समय में बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करवा दीजिए, बिकॉज बच्चा तब सबसे ज्यादा एक्टिव है और तब ब्रेस्ट फीडिंग कराने से ऑटोमेटिकली मिल्क ज्यादा अच्छे से बनेगा और बच्चा भी एक्टिव रहेगा। और बच्चे को कोई भी प्री लैक्टियल फीड मतलब जन्म गुट्टी वगैरह नहीं देना है, कोई बॉटल पैसिफायर, बच्चा रो रहा है तो उसको शांत करने के लिए मुंह में वो आर्टिफिशियल निपल, ऐसा कुछ नहीं देना है, शहद, गुड़ का पानी, घुट्टी, तो ये सब चीजें बिल्कुल नो, यू आर नॉट सपोज टू गिव एनीथिंग। सो दिस इज अ सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग जिसमें हमने कोई प्री लैक्टियल फीड नहीं दिया है, डायरेक्टली बच्चे को कोलेस्ट्रम दिया है। और अगर प्री लैक्टियल फीड दे देते हैं तो बच्चा फिर उसको चूसने की इच्छा कम होती है, राइट, एंड इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इनिशिएट फीडिंग विद इन 30 मिनट्स। सो दिस इज अगेन अ ब्रेस्ट फीडिंग बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन कॉर्नर। ये हमारी द्वारकेश हॉस्पिटल का फोटोग्राफ है जिसमें हमारी एक पेशेंट के साथ हमारी स्टाफ नर्स है। हमारी मेजॉरिटी स्टाफ नर्सेस को हमने लैक्टेशनल काउंसलर का कोर्स करवाया हुआ है, सर्टिफाइड कोर्स, जिससे कि वो पेशेंट्स को हेल्प कर सके ब्रेस्ट फीडिंग के मामले में। बिकॉज आजकल काफी सारी न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, नो प्री लैक्टियल फीड्स मैंने ऑलरेडी बोला है। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब है कि कई बार हमारे पास वर्किंग पेरेंट्स आते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, और उनके घर में कोई बड़ा नहीं है, मतलब उनकी मदर या सासू माँ नहीं है, तो कई बार वो सिखाने वाला नहीं होता है कि किस तरह से ब्रेस्ट फीडिंग किया जाए, राइट। सो इम्पोर्टेंट डूज रिगार्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग इज दैट ब्रेस्ट फीडिंग इज ऑन डिमांड, मतलब घड़ी के कांटे पे हर 2 घंटे पे फीड कराना ऐसा नहीं है। बच्चा लगे आपको कि भूखा है तो आप ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं, कम से कम 8 से 10 बार दिन में और रात में। करेक्ट पोजीशन हमें आज डॉक्टर मीनाक्षी जी बताएंगी कि किस तरह से मदर की और बच्चे की पोजीशन होनी चाहिए, किस तरह से करेक्ट लैचमेंट होना चाहिए, ये सब हमें बताएंगे। और हमें बेसिकली हमारा काम ऐसा है एज अ हेल्थ प्रोफेशनल्स कि हमें मदर का कॉन्फिडेंस बढ़ाना है कि आप चिंता मत करें, आपको अच्छा मिल्क आएगा। एंड बॉटल्स आर अ टोटल नो, बिकॉज बॉटल्स देने से बच्चे को निपल कंफ्यूजन होता है। जो प्लास्टिक की और ये सब बॉटल्स होती है उसमें डायरेक्टली आप मतलब उसमें से मिल्क ड्रिबल होता रहता है, तो बच्चे को चूसना भी नहीं है, और जबकि मदर की ब्रेस्ट पे बच्चे को चूसना है, राइट। सो इफ यू गिव बोथ द फीड, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, और जब उसको रेडीमेड आप चम्मच से दे रहे हैं या बॉटल से दे रहे हैं तो वो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए चूसने की मेहनत नहीं करेगा, राइट। तो मतलब आप बच्चे को निपल कंफ्यूजन जरूर अवॉइड करें। और काफी सारी मदर को ऐसा फीलिंग होता है कि मेरा मिल्क इनफ नहीं है, बच्चा भूखा रहता है, तो एक्चुअली ये सही नहीं है, ये एक्चुअली आपका एक परसेप्शन है। मतलब आप बी कॉन्फिडेंट, बच्चा जितना चूसेगा अंदर ऑटोमेटिक उतना बनेगा। इट इज डिमांड एंड सप्लाई रेशियो। सो मोर द बेबी सक्स द मोर मिल्क विल बी फॉर्म्ड इनसाइड। और ऐसा कुछ नहीं है कि ब्रेस्ट छोटी है तो मिल्क कम आएगा, ये गलत मान्यता है। और एक्चुअली आपका जो कॉन्फिडेंस है, मतलब आप सोचिए कि जब भगवान ने आपको बच्चा दिया है तो डेफिनेटली भगवान दूध भी भेजेगा, और ये आपका कॉन्फिडेंस, बच्चे को देखना, बच्चे की आवाज सुनना, तो ये सब चीजें, जस्ट थॉट ऑफ दैट बेबी, ऑटोमेटिकली मिल्क रिफ्लेक्ट शुरू हो जाता है और स्तन में से दूध का प्रवाह शुरू हो जाता है। तो ये कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप मतलब वरी कर रही हैं, चिंता कर रही हैं, डाउट कर रही हैं कि क्या मैं अपने बच्चे को अच्छे से दूध पिला पाऊंगी, तो दैट इज हैविंग अ नेगेटिव इम्पैक्ट। और कई बार पेन कैन ऑल्सो बी अ नेगेटिव इम्पैक्ट। तो पेन आइदर निपल पे अगर गलत तरीके से लैचमेंट है, या आपकी निपल में क्रैक पड़ गई है, सोर निपल्स हो गई हैं, या तो पेन इन द स्टिचेस, या डिलीवरी या सीजर के टांकों में दर्द है, तो भी इट कैन बी हिंड्रेंस इन द ब्रेस्ट फीडिंग। तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स हमने देखे कि ये ब्रेस्ट फीड वाले बच्चे को
इन्फेक्शन होने की, फेफड़े में इन्फेक्शन होने की, खांसी सर्दी होने की, सेप्सिस होने की संभावना कम होती है. एंड दिस इज अ अलार्मिंग नंबर. यू कैन सेव मोर देन 8 लाख लाइव्स. 8 लाख से ज्यादा बच्चों की डेथ, 5 साल से छोटे बच्चे 8 लाख से ज्यादा मर जाते हैं बिकॉज ऑफ इन्फेक्शंस रिलेटेड टू फीडिंग. तो अगर सब बच्चों को सही तरह से ब्रेस्ट फीड मिला तो हम इतनी सारे बच्चों की जानें बचा सकते हैं. और जैसा डॉक्टर कल्याण ने बताया था कि देयर आर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑल्सो. मतलब अभी आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चा जब बड़ा होता है तब भी उसमें काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं. उसको टाइप 1 डायबिटीज होने की संभावना, इरिटेबल बाउल डिजीज होने की संभावना कम हो जाती है, अस्थमा वगैरह की संभावना, और इवन माल ओक्लूजन, मतलब जो मुंह का शेप है, बॉटल और निप्पल वाले बच्चों का मुंह का शेप, दांत का शेप अलग हो जाता है. और डेंटल हेल्थ, मतलब दांत सड़ना वगैरह, ये संभावना भी कम होती है अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं. और दूसरी एक चीज मैं मदर्स के लिए बताना चाहूंगी कि आपको बच्चे के अंदर जो मिल्क में कैल्शियम जा रहा है वो आपकी हड्डियों में से जा रहा है. तो इफ यू डोंट टेक कैल्शियम तो आपकी हड्डियां कमजोर पड़ सकती हैं. तो इसीलिए आप लोग को कई बार आश्चर्य होता है लेडीज को कि मैडम अब तो डिलीवरी हो चुकी है, अभी आप क्यों मुझे विटामिन, आयरन और कैल्शियम दे रही हैं. तब मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपका जो डिलीवरी में ब्लड लॉस हुआ है वो रिकवर करने के लिए आयरन जरूरी है, डीएचए बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, और कैल्शियम आपके खुद के लिए. बिकॉज आप बच्चे को दूध पिलाएंगे तो आपके बोन्स वीक नहीं पड़ जाए. फिर आपको कमर दर्द होगी, फिर आप बोलोगे वो डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया था इसलिए कमर दर्द हो रही है. तो ऐसा नहीं है. बेसिकली आपके बोन्स, हड्डियों में से कैल्शियम कम होगा तो आपको कमर दर्द होगा. तो आप जरूर कैल्शियम की गोलियां, सप्लीमेंट्स, दूध वगैरह लीजिए. समझिए कि भले डिलीवरी हो चुकी है लेकिन मदर बेबी इज स्टिल अ सिंगल यूनिट, और आप जो खा पी रही हैं उसमें से बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क मिल रहा है. मतलब आपका न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप कम से कम 500 से 700 ml दूध लें और साथ में कैल्शियम और D3 के सप्लीमेंट्स भी जरूर लें. तो इस तरह से हम लोग एवरी ईयर वी आर हैविंग सच सेलिब्रेशंस, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस, जिसमें हम रीजनल लैंग्वेजेस में ये पोस्टर्स बनाते हैं जिससे पेशेंट्स को काफी जानकारी मिले. नाउ आई वुड लाइक टू क्विकली टच अपॉन सर्टेन मिथ्स. मिथ्स मतलब गलत मान्यताएं. तो जैसे पहला मिथ है कि गुट्टी देना चाहिए जन्म के बाद, तो बिल्कुल नहीं. सेकेंड थिंग इज ब्रेस्ट मिल्क इज नॉट इनफ ड्यूरिंग द फर्स्ट डे, फ्यू डेज. तो शुरुआत में बच्चे का पेट भी बहुत छोटा होता है, उसकी रिक्वायरमेंट बहुत कम है. तो शुरुआत में जितना मिल्क मदर के लिए आता है वो बच्चे के लिए इनफ है. जैसे बच्चा और चूसेगा और मिल्क बनेगा, राइट. और प्री लैक्टियल फीड, मतलब गुट्टी या शहद चटाना, ये सब जरूरी नहीं है. बिकॉज ब्रेस्ट मिल्क इज द बेस्ट मिल्क, और हमने अभी कोलेस्ट्रॉल के बारे में देखा था. और दूसरी ये गलत मान्यता है कि अगर बच्चा रो रहा है इसका मतलब ये नहीं है, ये है कि बच्चा भूखा है. तो ऐसा जरूरी नहीं है. और कई बार गलत तरीके से अगर आपने उसको, मतलब अनकंफर्टेबल बेबी, तो कई बार सपोज बच्चा सुसु किया है, बच्चा गीला है, बच्चे के पेट में गैस है, तो भी बच्चा रो रहा है. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि रो रहा है मतलब हर बार बच्चा भूखा है, राइट. हाउ डू यू नो, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो ब्रेस्ट फीड में कर रही हूँ वो बच्चे के लिए इनफ है. तो ये संतोषकारक आपको है, ऐसा कैसे पता चलेगा? पहला कि आपका बच्चे का वजन संतोषकारक बढ़ रहा है. अगर बच्चे का वजन मतलब आराम से 1 महीने के अंदर अंदर 500 ग्राम से किलो बढ़ रहा है, दैट मीन्स कि आपका ब्रेस्ट मिल्क बच्चे के लिए इनफ है. और बच्चे को दिन में 6-7 बार सुसु हो रही है, दैट ऑल्सो मीन्स के ब्रेस्ट मिल्क इनफ है, राइट. और मिल्क का ब्रेस्ट की साइज के साथ कोई लेना देना नहीं है. मतलब कुछ पतली महिलाएं हैं जिनका स्तन छोटे हैं तो वो कम दूध बना पाएंगी बच्चे के लिए, ऐसा नहीं है, राइट. सो मतलब स्तन में जो साइज है वो फैट की वजह से होती है, और उसके अंदर जो मिल्क के ग्लैंड्स होते हैं, दूध बनाने वाली नलियां, वो सेम होती हैं. और ब्रेस्ट फीडिंग इज पेनफुल. कुछ लेडीज डरती हैं, खास करके जो न्यू मदर्स हैं, पहली बार माँ बनी है, तो उनको मतलब डर लगता है कि मतलब बच्चा मेरे को काट लेगा या मुझे दर्द होगा. तो ये पेनफुल नहीं है. एक्चुअली आपको सही तरीका सीखना है. अगर आप सही तरीका लैचमेंट सीखेंगी तो आपको पेन नहीं होगा, राइट. और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के सिवाय बच्चे को एक्स्ट्रा पानी देना चाहिए गर्मी के मौसम में. तो ये गलत मान्यता है. कोई एक्स्ट्रा पानी की रिक्वायरमेंट बच्चे को नहीं होती है, राइट. एंड बच्चे को सपोज बुखार है या डायरिया हो गया है तो दूध पिलाना बंद करना चाहिए, ऐसा नहीं है. ऑन द कॉन्ट्री, अगर बच्चे को डायरिया है तो आप खास दूध पिलाइए, बिकॉज आपके ब्रेस्ट मिल्क के अंदर काफी सारा पानी है
जो बच्चे को डिहाइड्रेशन से बचाएगा। आपके ब्रेस्ट मिल्क के अंदर रोग प्रतिकारक शक्ति है, लैक्टिक बैसिलस है, तो ये सारी चीजें उसको डायरिया से उल्टा रिकवर होने में अच्छी रहेंगी। सो डोंट स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग इफ द बेबी हैज डायरिया और वॉमिटिंग। और अगर मदर को इन्फेक्शन है तो भी ब्रेस्ट फीडिंग बंद करने की जरूरत नहीं है। इस अभी पिछले साल हमारे पास काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे आए थे कि सपोज मदर को कोविड इन्फेक्शन है तो क्या करें, तो उसमें हम लोग मतलब इस तरह से बता रहे थे कि अगर पॉसिबल है तो एक्टिव कोविड इन्फेक्शन जब सीटी वैल्यू ज्यादा है उन समय में अवॉइड कर सकते हैं, पर लेटर ऑन मदर कैन वेयर द मास्क, वॉश द हैंड्स, मेंटेन हाइजीन, ब्रेस्ट मिल्क करा के फिर बेबी को अगेन रिलेटिव्स को हैंड ओवर कर सकते हैं। सो देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन। इवन HIV मदर्स में भी वी हैव टू वे द रिस्क वर्सेस बेनिफिट एंड अकॉर्डिंगली एडवाइज द पेशेंट। हर बार निप्पल धोने की जरूरत है बिल्कुल नहीं है, उल्टा बार बार पानी से निप्पल को धोएंगी तो निप्पल की जो स्किन है वो बहुत ड्राई हो जाएगी एंड मदर विल नॉट गेट प्रेग्नेंट इफ ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये मैंने ऑलरेडी बताया कि ये गलत मान्यता है। और ब्रेस्ट फीडिंग से आपका कोई फ्रीडम का लिमिटेशन नहीं होता है, ऑन द कॉन्ट्री यू आर फ्री टू टेक कैरी योर बेबी एनीवेयर, और साथ में वो बॉटल और झोला और कटोरी चम्मच कुछ लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप है और आपका बच्चा है, आप कहीं भी उसको ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। अगेन दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग बिलीफ दैट ब्रेस्ट फीडिंग ruins द शेप ऑफ द ब्रेस्ट। ब्रेस्ट का शेप बेसिकली जब आप वेट गेन करती हैं प्रेगनेंसी के दौरान और उसके बाद वेट लॉस होता है तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सैगिंग आता है, आप ब्रेस्ट फीड कराओ कि नहीं कराओ। तो अगर आपको सैगिंग नहीं चाहिए तो यू हैव टू डू सम एक्सरसाइजेस जिससे आपकी मसल टोन अप हो, पर बाकी ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से सैग होता है ये गलत मान्यता है। बॉटल फीडिंग कराना इजी है ये भी एक गलत मान्यता है, इट इज अ मिथ। On the contrary, bottle increases the nipple confusion. It is time consuming. It is dangerous. बच्चे में कई बार श्वास नली में भी दूध चला जाता है, फेफड़े में दूध चला जाता है, तो कई बार इन्फेंट डेथ सिंड्रोम भी हो जाता है, मतलब मिल्क से बच्चे की लंग्स में मिल्क चला जाता है। तो कई बार ऐसे हमने खराब इंसिडेंसेस भी देखे हैं। तो बॉटल फीड तो इट इज अ टोटली नो। अगर बहुत जरूरत है तो चम्मच से फॉर्मूला फीड देना फिर भी ठीक है, पर बॉटल से तो बिल्कुल नहीं देना है। और कुछ लोगों में ऐसी मान्यता है कि मॉडर्न फॉर्मूला फीड इज सेम एज ब्रेस्ट मिल्क, तो वो कितना भी ट्राई कर ले पर मदर के मिल्क जैसा वो नहीं बना सकते फैक्ट्री में। बेसिकली इट इज अ मॉडिफाइड काउ मिल्क या सोय मिल्क, बट उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, खास करके उसके अंदर जो एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टी है, बायो एक्टिव फैक्टर्स हैं, वो मदर मिल्क जैसे नहीं है। सो बस मैं एंड में यही कहना चाहूंगी कि ensuring maternal nutrition and successful breastfeeding is not sole responsibility of mothers. It is a societal responsibility. हम सबकी जिम्मेदारी है समाज की कि मदर को हेल्प करें और बच्चे को स्तनपान कराने में हेल्प करें। So wish you a very happy and healthy pregnancy and wish you all happy times with your baby, breastfeeding the baby. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for your information. Thank you, dear. I wish we had this kind of webinar 10 years back when I was pregnant and I as a mother, I faced so many issues. I think that got me to be a lactation consultant. Okay, wonderful. So can I have a CV slide of Dr. Mandakini ji? I would like to ma'am, you'll have to make me the host again. Okay, I'll do that. So, और मैंने बीच में देखा था कुछ लोगों ने रेज हैंड किए थे, सो आप लोग क्या कर सकते हैं कि प्लीज टाइप योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। सो एट द एंड ऑफ द सेशन माई सेल्फ और डॉक्टर मंदाकिनी, हम लोग कोई भी वी विल मंदाकिनी जी हैव मेड यू द होस्ट। सो एंड में हम लोग क्वेश्चंस ले लेंगे, अभी पहले हम सेशन कंप्लीट करेंगे, बट प्लीज राइट योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। आई थिंक कोमल जी ने बीच में हैंड रेज किया था, तो प्लीज टाइप योर क्वेश्चन। So yeah, Mandakini ji, can I have your CV slide, please? I would like to introduce you to the audience. Yeah, ma'am. Just a second. Yeah. Is it visible? Yes. You can make it full screen, please. Yeah, thank you so much. So again, I am happy to welcome Dr. Mandakini Chopra ji again. And actually, पिछली बार मैंने इनका सेशन सुना था और मुझे इतना अच्छा लगा था the way she explained everything. So मैंने सोचा कि इस बार भी मुझे इन्हीं को invite करना है. Dr. Mandakini ji is a certified manual therapist. She is a Pilates instructor. She is a certified lactational counseling specialist from BPNI.
and she has many certificates. She's a hypnotherapist, she's a yoga expert, and basically a holistic health science expert. And she's a life member of the Indian Association of Physiotherapy. And she's also a member of the Delhi Council of Physiotherapy. She's a member Childbirth and Postpartum Professional Association. And she's also a member of BPNI, that is the Breastfeeding Promotion Network of India. So even I am also a BPNI member. And Mandakini ji, today you are going to speak about the proper postures in which the female, the lady has to be there, the baby has to be held. And also आप हमें latchment के बारे में बताइए. And also please cover the things, the problems like sore nipples, cracked nipples, nipple shield use करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. So I'm very sure that you are going to give the best justice to the topic. So over to you, Dr. Mandakini ji. Thank you so much, ma'am. I'll be covering today right ways to breastfeed. हम बात करेंगे कि क्या सही तरीके हैं आप लोग ब्रेस्ट फीड कर सकते हैं. हम बात करेंगे कि आपके पोस्चर कैसा होना चाहिए. जैसा डॉक्टर बीनल ने अभी डिस्कस किया था कि माँ को जब दर्द होता है तब उसका एक नेगेटिव जो स्ट्रेस है जिसकी वजह से आपका प्रोडक्शन ऑफ मिल्क कम हो जाता है. सो उसको आप कैसे अगर आपका नेक में पेन है या बैक में पेन है उसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है. तो क्या तरीके हैं आप अपने आप को रिलैक्स रख सकती हैं, क्या तरीके हैं कि आप अपना प्रोडक्शन जो है मिल्क का स्ट्रेस फ्री और अच्छे से बच्चे को दे सकते हैं. So proceeding first, this is the first thing which I would like to talk about, the postures of the mother. आप जब बच्चे को फीड कराती हैं तो ये ध्यान रहे कि आप सपोर्टेड बैठे हो. ओके, सो ये ध्यान रहे कि आप अपने आप को सपोर्टेड बैठे हैं. सीधे बैठेंगे, चिन को अंदर रखते हुए, शोल्डर्स को रिट्रैक्ट करते हुए सीधे बैठिए. अगर आप अपने बच्चे को इस तरीके से फीड कराती हैं आगे झुक के, दिस इज हाईली नॉट एडवाइजेबल बिकॉज द मोमेंट यू डू इट लाइक दिस, आपका शोल्डर स्लाउच्ड है. जब आपका शोल्डर स्लाउच्ड है तो आपको अपर बैक में दिस साइड, आप देखो मेरा स्पाइन ऐसे हो गया, आपका शोल्डर में पेन आना शुरू हो जाएगा, नेक में पेन आना शुरू हो जाएगा. ये हिस्सा बहुत हैवी हो जाएगा. जब ये हिस्सा हैवी हो जाएगा तो आप रेगुलर स्ट्रेस में रहोगे, दर्द में रहोगे. और जब भी माँ परेशान है या दर्द में है, अगर आपने डॉक्टर शाह की स्लाइड सुनी है तो आपका मिल्क प्रोडक्शन का वो जो रिफ्लेक्स है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप फीड कराएं आप अपने आप को सीधा बैठें. अगर आपको लगता है कि हाइट कम है तो 2 तकिए रख लीजिए, उसके ऊपर बच्चे को प्लेस करिए एंड देन यू गो इन फॉर फीडिंग द चाइल्ड. सेकेंड थिंग, जब आप बैठी हैं तो एक बोन होती है विच इज कॉल्ड एज इशियल बोन. हम अक्सर क्या करते हैं, जब हम बैठते हैं तो हम इस तरीके से बैठते हैं. जब हम ऐसे बैठते हैं तो हम अपनी टेल बोन पे बैठते हैं. सो ट्राई एंड अवॉइड सिटिंग ऑन द टेल बोन बिकॉज अगर आप टेल बोन पे बैठोगे तो आपको टेल बोन में पेन होना शुरू हो जाएगा और आप बच्चा जो आप फीड कराते हो कम से कम आधे घंटे से sometimes it takes more also because you have to have lots of patience to feed the child. So अगर आपका पोजीशन ठीक नहीं है, जब आप खुद ही स्ट्रेस में हो तो आप बच्चे को कैसे ध्यान दे पाओगे. So it is very important कि आप अपना posture सही मेंटेन करो. Always sit on the ischial bones which is called as, जिसे तशरीफ भी बोलते हैं हिंदी में और उर्दू में. तो आप तशरीफ रखिए, तशरीफ पे बैठिए और आप टेल बोन पे मत बैठिए. आपके जो हिप्स हैं वो एक जरिया है जिसपे आपको बैठना चाहिए, ना कि अपनी पीछे वाली हड्डी पे. जब भी आप लेटती हैं तो ध्यान रखें कि आप अपने पैरों के बीच में तकिया रख सकती हैं. इस तरीके से आप लेटेंगी. और जब आप बच्चे को फीड करा रही हैं तो इस तरीके से सर के नीचे हाथ ना रखें, हमेशा हाथ साइड में, गर्दन को नाइसली पिलो के साथ सपोर्ट करते हुए. ये जो हिस्सा होता है आपके कान और आपके कंधे के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इतना चौड़ा तकिया आप जब करवट लेटती हैं तब होना चाहिए. अगर इससे छोटा तकिया होगा तो गर्दन आपकी ऐसे जाएगी. द मोमेंट आपकी गर्दन ऐसे जाएगी तो इस हिस्से में दर्द होनी शुरू हो जाएगी और फिर अगेन आप अनकंफर्टेबल रहेंगी टू फीड. नाउ कमिंग टू राइट पोस्चर्स ऑफ द बेबी. नाउ मेक श्योर कि जब भी आप देखिए, इसमें 2 पिक्चर्स दी हुई हैं. एक तरीका है कि आप बच्चे को ऐसे करके फीड करा रही हैं, एक तरीका है जिसमें आप बच्चे को नाइसली सपोर्ट दिया है आपने. उसका जो सर है, सो द हेड एंड बॉडी इज इन स्ट्रेट लाइन, एक सीधाई में होने चाहिए.
दूसरा, जो उसकी नाक है वो डायरेक्टली, उसका जो फेस है वो डायरेक्टली बच्चे का, उसकी ब्रेस्ट पे फीड करते वक्त उसका जो फेस है वो डायरेक्टली उसको फेस करना चाहिए सामने की तरफ। नाक जो है वो ऑपोजिट टू द निपल्स आएगी। That's how you are actually posing it, and keep the baby as close as possible to you. Don't make it too far, or don't do it like this. You have to keep yourself closer to the baby, yet not slouching. Sit straight, lift the baby up, nicely support the baby, and that's how you feed the baby. मेक श्योर कि आपके शोल्डर्स नीचे नहीं है, या बच्चा ऐसे टिल्टेड नहीं है, या आप बच्चे की गर्दन पकड़ के इस तरीके से माएं कई बार फीड कराती हैं, ये सारे तरीके गलत हैं। जैसे आप देख सकते हैं सेकेंड पिक्चर में, शी इज बिजी इन समथिंग एंड शी इज हेल्डिंग द चाइल्ड लाइक दैट। इट इज ऑलवेज ट्राई एंड फॉर्मुलेट अ कनेक्ट, जैसा कि मैडम ने भी कनेक्ट किया था, डॉक्टर शाह ने भी कवर किया था अपनी स्लाइड में, कि आपको एक इमोशनल बॉन्डिंग करनी है जब भी आप अपने बच्चे को फीड करा रहे हैं। सो व्हेनेवर यू आर फीडिंग द चाइल्ड, मेक श्योर यू कीपिंग इट नाइस पोस्चर एंड यू कनेक्टिंग टू द बेबी। डू नॉट कीप योरसेल्फ, अपने आप को बिजी ना रखें फोन में या टीवी में, अपने आप को बिजी ना रखें, बच्चे के साथ बॉन्डिंग फॉर्म करें, एंड दैट्स हाउ यू सपोज टू कीप द बेबी। Now this is very important and I would like to मैं अपने हर पेशेंट को बोलती हूँ कि बच्चे को फीड कैसे कराएं। आप दो तरीके के ग्रिप रख सकते हैं। मान लीजिए ये ऑर्गन है जिससे आप फीड करा रही हैं, सो या तो एक सी ग्रिप है जैसे कि ऐसा, या फिर एक यू ग्रिप है जैसे कि ऐसा। सो ये हिस्सा यू बनाता है, यहाँ पे या तो आप स्क्वीज करेंगी या आप ऐसे स्क्वीज करेंगी। अक्सर माएँ क्या करती हैं, इस तरह से कैंची बनाती हैं और तब स्क्वीज करती हैं। अब जैसा कि मैडम ने बताया, इस एरिया में डक्ट्स होती हैं। सो इमेजिन करिए, जैसे आप उस पिक्चर में ऊपर देख सकते हैं जहां पे मैंने दिखाया है कि एडिपोज टिश्यू है, डक्ट्स हैं, लोब्यूल्स हैं। ये जो डक्ट्स हैं जो कि इस काले हिस्से में है, इसके थ्रू आपका जो मिल्क है वो बच्चे में ज्यादा, निपल से मिल्क नहीं आता है। तो जो अगर आप निपल फीड कराती हैं, दैट इज हाईली नॉट सजेस्टेड। यू शुड ऑलवेज फीड, ये हिस्से से फीडिंग होता है। जब आप इसी को ब्लॉक कर देंगी तो ये सोचिए कि आप एक स्ट्रॉ से पानी पी रही हैं और मैंने नीचे से स्ट्रॉ दबा दिया, तो पानी ऊपर आएगा ही नहीं। तो बच्चा चाहे जितनी कोशिश कर ले उसको फीड मिलेगा ही नहीं, बिकॉज आपने यहाँ से प्रेस कर दिया है। सो दैट इज व्हेन आपका बच्चा इरिटेट हो जाता है, वो फीडिंग छोड़ देता है, उसको लगता है कि आता ही नहीं है। सो ये एक नॉर्मल बिहेवियर होता है किसी भी इंसान का, जिसमें हमें रिवॉर्ड, अपने एफर्ट के लिए रिवॉर्ड चाहिए होता है। तो जब बच्चा एफर्ट कर रहा है और उसको मिल्क जो कि उसका रिवॉर्ड है वो उसको नहीं मिल रहा है, तो इवेंचुअली वो एफर्ट करना छोड़ देगा और फिर आपको प्रॉब्लम होगी। जब आप इस तरीके से दबाती हैं तो आप क्या कर रही हैं कि स्क्वीज कर रही हैं ना। व्हाट यू आर डूइंग विद दिस इज, आप जब बड़ा महाराजा बर्गर अगर आप खाती हैं, सो जस्ट इमेजिन एक बड़ा बर्गर आप खा रहे हैं, तो आपका मुंह का साइज छोटा है तो आप उस बर्गर को स्क्वीज करते हो ताकि वो आपके मुंह में घुस जाए। इसी तरीके से आपके बच्चे का मुंह छोटा सा है और आपका ब्रेस्ट का साइज इतना बड़ा है, वो कैसे उसके मुंह में जाएगा। तो या तो आप उसको इस तरीके से दबा के ले जा सकती हैं या आप उसको इस तरीके से छोटा कर सकती हैं ताकि वो आपके बच्चे के मुंह में अच्छे से लैच हो जाए और ये सारा एरिया कवर हो जाए। राइट, सो दिस इज अ इजी वे। जैसे मैं अपने जो मदर्स मेरे पास आती हैं उनको मैं डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश करती हूँ कि आप कैसे बच्चे को समझ सकती हैं कि किस तरीके से आप उसको फीड कराएं। Coming on next is how to hold the baby. Now there are several positions. जो cesarean sections होते हैं उसमें हम बच्चे को सीधा ऐसे बिठा करके we can just make the baby feed like this. Okay. Next what we do is, एक तरीका होता है जिसमें आप क्रैडल पोजीशन, क्रैडल मतलब सेम साइड पे बच्चा है एंड उसका जो सर है, तो आपने एक हाथ उसका हिप पे रखा है, एक हाथ उसका सर पे रखा है और इस हाथ से आप ब्रेस्ट को छोटा या बड़ा कर रही हैं। सो यू डू इट लाइक दिस और यू होल्ड इट लाइक दिस एंड दैट्स हाउ यू फीड द बेबी। दूसरा तरीका है क्रॉस क्रैडल, जिसमें आपने उल्टे हाथ से पकड़ लिया, मतलब अगर आपका लेफ्ट साइड का फीड करा रही है तो आप राइट साइड से होल्ड करिए। अगेन आप ये ध्यान रखें कि उसका बम सपोर्टेड है, उसका हेड सपोर्टेड है एंड इट इज इन वन स्ट्रेट लाइन एज आई सेड। ओके, एंड देन दिस हैंड यू कैन यूज, आप इस हाथ का इस्तेमाल कर सकती हैं टू मैनिपुलेट द ब्रेस्ट। नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छा तरीका जो मुझे लगता है, जो मैं मदर्स को भी बताती हूँ, इज अ फुटबॉल होल्ड, वेयरइन आप बच्चे को इस तरीके से होल्ड कर रही हैं। यू कैन मेक इट लाइक दिस एंड देन यू कैन फीड इट डायरेक्टली ओवर द, सो अगेन सेम थिंग, आपको सारा हिस्सा फ्रॉम द बम टिल द हेड यू आर सपोज टू सपोर्ट इट। ठीक है, इस तरीके से आप सपोर्ट कर सकती हैं एंड देन यू डू इट। डू नॉट होल्ड द चाइल्ड लाइक दैट एंड द अदर साइड इज
पूरा पीछे का हिस्सा नीचे है, ऐसा ना करें। उसको अच्छे से नाइसली, जैसे मैंने बोला, रूल सेम रहेगा, इट हैज टू बी इन वन स्ट्रेट लाइन, दैट इज हाउ यू सपोज टू फीड द बेबी। आप इसमें देखिए लेट बैक पोजिशन है जो कि सिजेरियन में है, जो मैंने सबसे पहले कवर की। अब सिजेरियन में क्या है कि आपका यहाँ कट है, आपको सीधे बैठने में दिक्कत होगी, इसलिए हम क्या करते हैं, मदर के ऊपर ही रख करके आप डायरेक्टली बच्चे को ऐसे रखिए, अगेन उसके नेक को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे का हेड कंट्रोल नहीं आता है, 3 महीने तक बच्चे का नेक फ्लॉपी रहेगा। अगर आप उसको नहीं सपोर्ट करेंगी तो बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए हमेशा उसकी गर्दन को सपोर्ट कीजिए, उसके बम को पकड़िए एंड देन जस्ट लीव इट लाइक दिस, इट विल डू इट सर। ऑलवेज सजेस्टेड, जैसे कि मैम ने बोला कि देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स दैट हैपेंस, सो 2-3 चीजें मैं इसमें कवर करना चाहूंगी। एक होता है इंगॉश प्रेस। नाउ इंगॉश प्रेस क्या होता है कि आपका जो मिल्क है वो तो इसमें प्रोड्यूस हो रहा है ना, काफी सारी वजहों की रीजंस की वजह से वो पूरा मिल्क निकल नहीं रहा है। फॉर द रीजन हो सकता है बच्चा लैच ठीक से नहीं कर रहा है, हो सकता है कि आप एक ही साइड का फीड कराती हैं। तो ये सजेस्ट किया जाता है कि अगर मान लीजिए ये भरा हुआ है, आप सारी डायरेक्शंस में, जो मैंने आपको पोजीशंस बताई, कोशिश कीजिए आप सारी पोजीशंस करिए, बिकॉज जब आप सारी पोजीशंस करते हो तो सारी डायरेक्शंस में जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो सब जगह से पूरी तरीके से ये खाली हो जाती है और आपको इंगॉजमेंट ऑफ ब्रेस्ट का प्रॉब्लम नहीं होता है। बाय चांस आपको इंगॉजमेंट रखती है, आपको पेन हो रहा है, तो आप उसमें वार्म कंप्रेस कर सकती हैं। आप कोशिश कर सकती हैं कि उसको एक्स्ट्रा मिल्क जो अंदर है उसको स्क्वीज करिए और उसको आप स्टोर कर सकती हैं रूम टेम्परेचर पे, या फिर आप उसको फ्रीज कर सकती हैं, जो कि अगेन यूजफुल हो सकता है। अगर आप उसको रूम टेम्परेचर पे रख रही हैं तो उसको 4 घंटे में इस्तेमाल करके खत्म कीजिए, या फिर अगर आप उसको फ्रिज में स्टोर कर रही हैं तो आप उसको 24 घंटे से 4 दिन के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन क्या टेम्परेचर है, आप उसको स्टोर करके यूज कर सकती हैं। Now coming on to other things कि जैसे निपल क्रैकलिंग। अब निपल क्रैकलिंग क्यों होती है कि जब बच्चा आपका इस पे लैच करेगा, सो व्हेन मैडम सेड कि वो आपको पेनफुल होता है ब्रेस्ट फीडिंग, पेनफुल ब्रेस्ट फीडिंग केवल तब होता है जब बच्चा यहाँ पे फीड कर रहा है, उसको यहाँ पे फीड नहीं कराना है, हमें उसको इस एरिया पे फीड कराना है। सो ऑलवेज मेक श्योर कि इट इज नॉट फीडिंग हियर। नाउ व्हेन द बेबी feeds here, that's when you can hand up in having issues with your nipple. Now what you do if you have a cracked nipple, आपका जो fresh breast milk होता है उसी को लीजिए, यहाँ पे लगाइए, जैसे मैडम ने कहा उसके अंदर इट इज अ गुड मॉइस्चराइजर, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तत्व हैं जो कि ऑटोमेटिकली हीलिंग भी करवा देंगे, तो आप उसको यहाँ लगा सकती हैं। यू कैन कीप इट, यू कैन क्लीन इट विद अ सॉल्ट। आप नमक का जो पानी होता है उसके साथ उसको साफ कर सकते हैं ताकि उसमें कुछ इन्फेक्शन ना हो। एंड ऑब्वियसली इफ इट इज टू ट्रबलिंग तो आप अपने डॉक्टर को कनेक्ट कर सकते हैं, वो आपको प्रॉपर मेडिकेशन बताएंगे व्हाट नीड्स टू बी डन विद दैट। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट इज लैचिंग द बेबी। नाउ लैचमेंट ये एक रिफ्लेक्स है बेबी का। जब आप बच्चे को यहाँ पे ऐसे करेंगी तो वो मुंह खोलेगा, ये एक रिफ्लेक्स होता है बच्चे का, और वो उस तरफ, मान लीजिए आपने इधर किया तो वो उस तरफ मुंह घुमाएगा। सो जब भी आपको बच्चे को फीड कराना है पहले उसके साथ थोड़ा खेलिए, जब आप उसके साथ खेलेंगे वो ऑटोमेटिकली मुंह खोलेगा और तब आपको दिक्कत नहीं आएगी। डायरेक्टली उसके मुंह में मत कोशिश कीजिए डालने की, जस्ट प्ले विद द बेबी। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज योर बेबी, जस्ट ट्राई एंड स्टिमुलेट समवेयर अराउंड दिस साइड, यहाँ पे स्टिमुलेट कीजिए, थोड़ा सा कभी उसकी नाक पे स्टिमुलेट कीजिए, इस तरफ स्टिमुलेट कीजिए। तो जब आप ऐसे करेंगे तो उसका वो रिफ्लेक्स खुलेगा और वो इट विल डू लाइक दिस, वो ढूंढेगा कहाँ पे क्या चीज है। सो दैट मीन्स ही इज हंग्री, ही और शी इज हंग्री। देन नाइसली, जैसे मैंने आपको बोला, उसको स्क्वीज कीजिए और उसके मुंह में, क्योंकि उसका मुंह वाइड ओपन हो जाएगा, तो ये एक वाइड ओपन मुंह, आप देखिए पिक्चर में उसने कितने अच्छे से मुंह खोला हुआ है। तो जब उसका मुंह पूरी तरीके से खुला हुआ है तब आप आराम से अपना पूरा एरिया, जो ब्लैक तरह का एरिया है, पूरा उसके अंदर डाल सकते हैं। नाउ दिस इज हाउ इट इज। आपने स्टिमुलेट किया, उसके नोज को हिट किया, उसकी साइड्स को हिट किया, और आप हेलो, am I audible? Am I audible? आशुतोष जी प्लीज दूसरे लोगों को म्यूट कर दीजिए, डिस्टरबेंस आ रहा है। सो इस तरीके से आप स्क्वीज करिए, उसके नोज के साथ खेलिए, जस्ट प्ले विद द नोज, प्ले विद द माउथ एंड प्ले विद दिस थिंग, ताकि वो वाइड ओपन करेगा और फिर आप आसानी से बच्चे के मुंह में डाल सकते हैं। नाउ लेट्स कम अप टू
कैसे है गुड लैचमेंट। जैसे मैंने आपको बोला, कुछ बच्चे केवल इस पे लैच करते हैं, वहां कुछ नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है, जो सब कुछ है वो यहाँ आएगी केवल इसलिए है ताकि बच्चे का, बिकॉज दांत नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपके अच्छे से अंदर होल्ड हो सकता है ऑर्गन। इसका काम केवल उतना है, इस एरिया का काम है कि आपको वो फीडिंग देगा। तो कोशिश कीजिए, बच्चा वाइड ओपन अच्छे से मुंह खोला है, फिर आप उसके मुंह में डाल रहे हैं, तो जैसे आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, फिगर 1 का जो ए पार्ट है, दिस इज हाउ अ प्रॉपर लुक शुड बी व्हेन यू आर फीडिंग द चाइल्ड। उसका मुंह वाइड ओपन, नीचे वाला एरिया जो है वो इधर मैक्सिमम कवर कर रहा है इस पूरे ब्लैक एरिया को। तो आपका जो ब्लैक एरिया है वो मैक्सिमम मुंह के अंदर होना चाहिए। नोज जो है वो उसकी फ्री होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब आप फीड कराते हैं, ये एक बहुत बड़ी मिथ है जो मुझसे काफी मदर्स पूछते हैं कि बच्चे का नाक दबता है। नाक नहीं दबता है। आप ट्राई कर सकते हैं, अपना हाथ रखिए और नाक के ऊपर ऐसे दबाइए, आपका नाक नहीं दबता है, आप सांस ले सकती हैं, कुछ भी नहीं होता है। नाक ऐसे नहीं, नाक ऐसे दबता है, नॉस्ट्रिल्स ऐसे दबते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं दबते। देयर इज अ गुड स्पेस। तो बिल्कुल भी फीडिंग के टाइम पे बच्चे का नाक नहीं दब रहा है। और हर इंसान का एक रिफ्लेक्स है, अगर उसका नाक दबेगा तो वो सबसे पहले अपने आप को छुड़ाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप परेशान मत होइए कि बच्चे का नाक दबता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, ये जरूर ध्यान रखिए कि उसका जो पॉस्चर है वो बहुत ज्यादा ऐसे ना हो। पॉस्चर हैज टू बी करेक्ट, कि गर्दन सीधी है, उसकी गर्दन ऐसे नहीं होनी चाहिए, वरना उसको अंदर स्वेलोइंग में प्रॉब्लम होगी, बिकॉज ये उसकी डक्ट्स है। आप डक्ट्स ही छोड़ दोगे तो फिर वो कैसे अंदर लेके जाएगा। सो मेक श्योर यू आर वेरी मच फोकसिंग ऑन द राइट पॉस्चर्स। नाउ कमिंग टू होता क्या है अगर आप बैड लैचमेंट करते हो, सो व्हाट हैपेंस नाउ। अगर बैड लैचमेंट है, जैसा कि मैडम ने बोला, इट इज अ सीक्वेंस। सो व्हाट हैपेंस इज, see this is how is the production happening। दो hormones होते हैं, प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन। एक का काम है प्रोडक्शन, जैसे कि प्रोलैक्टिन उसका काम है प्रोड्यूस करना, और ऑक्सीटोसिन का काम है उसको बाहर बच्चे के लिए निकालना। अब होता क्या है कि जब बच्चा इस पे लैच करता है, तब स्टिमुलस दिमाग में जाता है और फिर ही प्रोडक्शन की साइकिल होती है, और कोई तरीका नहीं है आपका मिल्क बढ़ाने का। बहुत सारी मदर्स मेरे पास आती हैं जो पूछती हैं कि मेरा मिल्क का प्रोडक्शन नहीं है, मैं उसको कैसे बढ़ाऊं। तो मैं उनको हमेशा ये कहती हूँ कि आप रात की फीडिंग स्टार्ट कीजिए, क्योंकि रात के वक्त ये दोनों ही हार्मोन्स अपने पीक पर होते हैं, और वो आपकी डेफिनेटली मदद होती है। उस टाइम पे फीडिंग साइकिल बढ़ती है और प्रोडक्शन बढ़ता है। जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना ज्यादा ही आपका मिल्क इजैकुलेशन भी बढ़ेगा। सो इट इज ऑलवेज एडवाइज कि बच्चा इस एरिया को सही तरीके से लैच करे, वरना ये दोनों हार्मोन्स ही प्रोड्यूस प्रॉपर्ली नहीं होंगे, एंड देन यू लैंड अप इन इश्यूज। नाउ व्हाट आर द इश्यूज, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? क्योंकि आपका बच्चा आपके निपल पे ही करता रहेगा फीडिंग, सो प्रोबेबली आपके निपल्स में सॉरनेस हो सकती है, उसमें क्रैक्स हो सकते हैं, या फिर आपका मिल्क जो है प्रॉपर निकलेगा नहीं, बिकॉज अगेन इफ इट इज फीडिंग हियर, और यहाँ से तो निकलता नहीं, निकलता तो यहाँ से है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो जब वो यहाँ पे फीड ही नहीं करेगा उसके मुंह में, जब वो सकिंग ही नहीं करेगा, निकालेगा ही नहीं, तो योर ब्रेस्ट विल बी engorged, एंड दैट इज व्हेन यू लैंड अप इन हैविंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। ब्लॉक डक्ट्स हो जाती हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। अगर ब्लॉक डक्ट्स होती हैं तो आप उसको थोड़ा सा वार्म कंप्रेस कर सकती हैं, हल्का सा मसाज कर सकती हैं, एंड देन थिंग्स कैन गो ऑफ। और बच्चा जब स्क्वीज करता है, सकलिंग करता है, तो एक्चुअली इवन आपकी ब्लॉक डक्ट्स भी ठीक हो सकती हैं। सो अपरेंट पुअर सप्लाई की वजह से क्या होता है, बेबी हमेशा अनसेटिस्फाइड रहता है, उसको हमेशा भूखा रहता है, वो फ्रस्ट्रेटेड रहता है, वो सकलिंग नहीं करता, क्योंकि जैसे मैंने कहा बिहेवियर की एक पॉलिसी है कि जब तक वो एफर्ट करेगा और उसको अवार्ड नहीं मिलेगा तो वो बच्चा काम ही नहीं करेगा। दैट्स हाउ उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा फीडिंग में। सो दैट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि आप लैचमेंट अच्छा करिए, ये सारे उसके फायदे हैं। एंड बच्चा जब अच्छे से ब्रेस्ट भी नहीं मिल्क प्रोड्यूस करेगी, बच्चा फीड नहीं अच्छे से करेगा, तो ऑब्वियसली उसका गेन नहीं होगा वेट। माँ भी हमेशा स्ट्रेस में रहेगी कि मैं अपने बच्चे को फीड नहीं करा पा रही हूँ, मेरे साथ प्रॉब्लम्स हैं, यू नो। सो इट्स ऑलवेज अ स्ट्रेस फॉर द मदर, इवन द बेबी आपका ग्रो नहीं कर पा रहा है प्रॉपर्ली। सो इट्स ऑलवेज सजेस्टेड कि आप सही लैचमेंट कराइए। ट्रस्ट मी, आप लैचमेंट ठीक करा देंगी, आपकी आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉर्टेड हो जाएगी। और जैसे मैडम ने कहा, डोंट टेक साइड रूट्स, कि हमने रात को सोना है तो हमने बॉटल दे दिया, आपने अगर चम्मच दे दिया क्योंकि आपको फीडिंग नहीं करने को हो रहा है, आप बैठ नहीं पा रही हैं, दिस इज नॉट सजेस्टेड।
ओनली बिकॉज फॉर द रीजन कि बच्चा जब तक उसकी आदत नहीं पड़ेगी सकलिंग की, तब तक वो करेगा नहीं, और जब तक वो सकलिंग करेगा नहीं, तब तक आपका प्रोडक्शन उस लेवल पे अच्छा होगा नहीं। ऐसी कोई मदर नहीं होती है जिसके अंदर ये ताकत नहीं है, बिकॉज वुमेन, औरत को काफी ताकत है फॉर नर्चरिंग द नेचर। अगर आप बर्थ दे सकती हैं तो उसको पाल भी सकती हैं। ये एक नेचुरल गिफ्ट है, इस कदर तक नेचुरल है कि एक प्री मेच्योर मदर का जो मिल्क होता है उसकी कंसिस्टेंसी और एक नॉर्मल डिलीवर नॉर्मल टर्म मदर का जो बेबी है उसका जो प्रोडक्शन है मिल्क का, उनकी कंसिस्टेंसी में भी फर्क होता है। सो द नेचर इज सो इतना ज्यादा वो नेचर हर चीजों का ध्यान रखता है। तो ऐसा नहीं है कि जो माँ है वो फीड कभी नहीं करा सकती, ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि हमने टेक्निकली खराब करा है, उसको ठीक करेंगे तो आप सही तरीके से करा सकते हैं। ये लास्टली मैं एक और बार बताना चाहूंगी, गुड लैचमेंट है, मुंह वाइड ओपन है, लोअर लिप जो है वो नीचे की तरफ बाहर की तरफ है, चिन जो है वो ब्रेस्ट से लगा हुआ है, एंड जो ओरियला है वो ऊपर का ज्यादा विजिबल है, नीचे का अंदर है। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग इज एब्सोल्युटली अ पेन फ्री प्रोसेस। अगर आपको फीडिंग के दौरान दर्द हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गलत है। आप तुरंत अपने हेल्थ के प्रोफेशनल से कनेक्ट कीजिए जो इसमें मास्टर रखते हैं, और उनसे बात कीजिए, वो आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। Now let's do some exercises। एक मैं दो तीन चीजें और कवर करना चाहूंगी। कई बारी मदर्स का एक क्वेश्चन होता है कि इन्वर्टेड निपल्स हैं तो उसमें हम क्या करें, कैसे फीड कराएं। तो इस तरीके का एक सिरिंज आता है, जिन लोगों के जो फ्लैट निपल्स हैं, इट इज समटाइम्स निपल्स इज इनसाइड, इट इज फ्लैट, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं एंड देन यू कैन पुट इट ऑन द ऑपोजिट साइड। इसको निकाल के ऑपोजिट साइड रख सकते हैं एंड देन आप इधर प्लेस करेंगे ओवर दिस एरिया एंड क्रिएट अ वैक्यूम। तो जब आप वैक्यूम क्रिएट करेंगे तो वो एरिया स्टक हो जाएगा अंदर में, एंड देन इवेंचुअली दिस कैन कम आउट। यू कैन ऑल्सो गिव सम काइंड ऑफ स्टिमुलेशन अराउंड दिस टू make the flat nipples bulge out, that will also help you to easily feed the baby. Now let's do some exercises ताकि आप स्ट्रेस फ्री रह सके। इनकी जरूरत क्यों है, क्योंकि मदर को रिलैक्स रहना बहुत जरूरी है। अगर मदर रिलैक्स नहीं है सो शी विल नॉट बी एबल टू फीड द चाइल्ड प्रॉपर्ली, एज वी ऑलरेडी मेंशन कि अगर माँ दर्द में होगी तो आपका जो प्रोडक्शन है मिल्क का उसमें अफेक्ट आएगा। दैट इज व्हाई इट इज सजेस्टेड कि आप रिलैक्स रहिए, जिसपे हम बात करेंगे कि हम कैसे एक्सरसाइजेस करके अपने आप को रिलैक्स रख सकते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन रेगुलेटिंग गुड हार्मोन्स एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू इन्वॉल्व सोली इन फीडिंग द बेबी। So let's exercise. First is the pectoral stretch. आप कैसे कर सकती हैं pectoral stretch? You can nicely sit on your chair. Okay. You can hold it back side, नीचे से पकड़ सकती हैं। So what you can do is you can hold it नीचे से and then just stretch yourself. So just stretch. So when you do this, you get a good stretch in the front area. The next one that you can do is you can sit relaxed. Yeah, मंदाकिनी जी, I'll have to leave for an emergency, so आप chat box के questions please देख लीजिएगा. Sure, ma'am. Sure, Yeah, ma'am. thank you so much. Thank you. Okay, ma'am. If there, okay, ma'am. Okay. Okay, the next thing is what I want you to do is you can hold it like this and then just stretch nicely backwards. Now make sure that you don't slouch yourself. Keep it straight and put it back like that. The next one is the arm stretch. आप इसको कर सकती हैं बैठ करके या खड़े हो सकती हैं, and then you can hold the side of the wall and then just turn yourself and stretch. You get a good stretch entirely this side, or you can sit like the lady is sitting in that picture. हाथों को पीछे करके, हाथों को पीछे करके इस तरीके से रख के, and then you can go and slouch and you get a good stretch entire from this to this range. जो उसमें रेड कलर का पिक्चर बना हुआ है, entire इस एरिया में आपको stretch आएगा. Now next is simple. Next stretches, you can just hold yourself nicely like this and then just stretch. So you get a good stretch here and then repeat it the other side. When you do it, make sure that you're doing it for approximately 20 seconds hold each exercise and do it 3 times in a go and do it 3 to 4 times in a day. ये सारी exercises आपको help करेंगे relax रखने में, आपका upper chest पूरा relax रहेगा. And that's how it helps. You can do like that.
So ऐसे स्ट्रेच कर सकते हो आप, ऐसे स्ट्रेच कर सकते हो, then you can do this way. So that's how you do the shoulder stretches. Next is your pelvic tilts. So what I suggest is, this is a very important exercise. You're supposed to activate your core, because if it is not अगर आपका core activated नहीं है तो आपको बैक पेन का इशू रह सकता है, नेक पेन का इशू रह सकता है. So it is very important कि आपका जो पेट का मसल है वो अच्छे से काम करे. तो आप ऐसे लेट सकती हैं सीधा, एंड देन जस्ट ट्राई टू एंगेज योर कोर. आपको करना क्या है, पेट में जो यहाँ पे गैप क्रिएट हो रहा है उसको दबाने का कोशिश कीजिए. जब आप दबाने का कोशिश करेंगे तो ये हिस्सा अंदर और ऊपर की तरफ जाएगा, अंदर और ऊपर की तरफ जाएगा. सो इस तरीके से आप बेड को कमर से नीचे दबाने की कोशिश कीजिए, हिप्स को टाइट कर सकते हैं. तो ये जो एच है उसको आपने इस तरीके से लाना है ऊपर की तरफ. सो इसको अगेन आप 20 सेकेंड्स होल्ड कर सकते हैं एंड डू इट 3 to 4 times in a day. Now this is in sitting, so what you can do is आप बैठे हैं नाइसली, बैठ करके आप पेट को अंदर और बाहर, so this is this and this, so tuck it in and relax, tuck it in and relax, tuck it in. ये आप अपनी चेयर पे बैठे बैठे भी कर सकते हो, आप पद्मासन में कर सकते हो जैसे इस पोजीशन में दिया हुआ है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डीप ब्रीदिंग. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक माँ को शांत रहना बहुत जरूरी है फॉर अ प्रॉपर डेवलपमेंट, फॉर आप अपनी शांति के लिए. और अगर आप स्ट्रेस में नहीं होंगी, आप शांत रहेंगी, शांत मन से होंगी, आप बच्चे का उतने अच्छे से ध्यान रख सकती हैं. सो कीप वन हैंड हियर, ब्रीद इन एंड रिलैक्स, ब्रीद इन, फील द ब्रेथ. आप गहरी सांस अंदर ले जाइए, फील करिए और रिलैक्स. Right, so this is next. Now before I end, I would like to place a small video कि आपकी मदद करेगा अंडरस्टैंड करने में कि मैं क्या कहना चाह रही थी. So आपको लैचमेंट कैसे कराना है, this is gonna help you. So यहाँ बच्चा आपका रो रहा है, that means he wants feeding. So मदर का रिलैक्स रहना बहुत जरूरी है. So अपने आप को नाइसली पिलो रख के पोजिशन कीजिए. Keep yourself relaxed. Drink lots and lots of water. If you have an issue of having breast milk production, पानी अच्छे से पीजिए. कई बार आप कम पानी पीती हैं तो भी आपका प्रोडक्शन कम रहता है. अपने आप को रिलैक्स बैठिए, अनक्रॉस मत बैठिए. वॉच करिए कि बच्चा क्या कर रहा है, लिप्स को लिकिंग कर रहा है, थम सकिंग कर रहा है, हेड्स पे कुछ ढूंढ रहा है. You need to search all that. And then you need to bring the breast near to the baby's mouth. So as I said, try to touch chin, then you try to touch the nose. अब वो अपना मुंह वाइड ओपन खोलेगा and the lips will be out, and that's how you can actually, tongue should be down and that's how it will start. And just monitor कि यहाँ पे sucking हो रहा है, वो आपको देखिए यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा कि yes it's using, और उसका नाक clear है, there's no nose being blocked. You see it nicely, she has taken it inside. इसमें देखिए पूरा काला हिस्सा उसका अंदर था और मुंह वाइड ओपन था, आपको कोई दर्द नहीं हो रहा था, and that's how it is a good feeding. किसी भी पोजीशन में आप दे सकती हैं, एनी पोजीशन यू हैव टू पोजीशन. जिस भी तरीके से आप रखेंगे आप ये ध्यान रखिए कि ये हिस्से सही है, और जब बच्चे का पेट भर जाएगा तो वो अपने आप आपका फीडिंग छोड़ देगा. So, जो भी लोग ये अटेंड कर रहे हैं, they can avail this voucher. आप कॉर्ड लाइफ टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं ये जानकारी लेने के लिए कि आप कैसे इसको अवेल कर सकते हैं. इसकी जानकारी आप कॉर्ड लाइफ से रजिस्टर करके मांग सकते हैं. Thank you so much for hearing us out, and these are my details. If you have any contacts, any issues, you can connect me on given handles, and मैं कोशिश करूंगी आपकी queries को sort out करने के लिए. I think अब आपके जो भी questions हैं आप अपने chat box में post कर सकते हैं, and we would like to answer them up. So I think first question, should we wear nipple cap if nipples are getting sort of painful? No, I don't suggest wearing a nipple cap. जैसा कि हमने कहा, जितना ज्यादा चीजें natural होंगी उतनी अच्छी रहती हैं. So आप कोशिश ये कीजिए कि जैसा मैंने आपको बोला, अगर आपके निपल सोर हैं तो आप कोशिश कीजिए कि उनको सॉर्ट आउट करने के लिए आप निपल फीडिंग अपनी लैचमेंट पे ध्यान दीजिए.
भी अगर निपल सोर हो रहे हैं तो उसमें जैसे मैंने आपको तरीके बताए, वार्म कंप्रेस करके आप उसको हील कर सकती हैं, सलाइन देके हील कर सकती हैं, या आप उसके ऊपर ब्रेस्ट मिल्क लगा के उसकी हीलिंग कर सकती हैं। लेकिन निपल कैप पहन के बच्चे को फीड कराना मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ। मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि उसको नेचुरल रखें, प्रोसेस को जितना ज्यादा उतना अच्छा है। बिल्कुल ब्रा पहन सकते हैं, ब्रा बहुत तरीके की ब्रा आती हैं, दे आर ब्रेस्ट फीडिंग ब्रास भी आजकल अवेलेबल हैं। सो आई थिंक दिस जी का क्वेश्चन, सो डेफिनेटली आप पहन सकते हैं, नॉट एन इश्यू एट ऑल। सो जैसा मैंने कहा पलक, ब्रेस्ट फीडिंग इज एक्सेप्शनली अ पेन फ्री प्रोसेस। अगर आपको फील हो रहा है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, पहले देखिए कि क्यों हो रहा है, क्या वो कोई ब्लॉक डक तो नहीं है, क्या वो आपका निपल तो क्रैक नहीं है, या फिर आपको क्या रीजंस हैं। तो अगर आपको फीडिंग के जो रीजंस हैं वो पता होने चाहिए कि आपको पेन क्यों हो रहा है, क्या वो आपको निपल क्रैकलिंग की वजह से हो रहा है, या वो आपको एंगॉज ब्रेस्ट की वजह से हो रहा है, या फिर आपको ब्लॉक डर्ट्स की वजह से हो रहा है। सारे रीजंस आपको पता होने, या फिर वो बच्चा एक्चुअली निपल पे बाइट कर रहा है, निपल पे फीड ले रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। केवल ये तरीके हैं, अदरवाइज ब्रेस्ट फीडिंग इज एब्सोल्युटली अ पेन फ्री प्रोसेस। आपको बिल्कुल पेन नहीं होना चाहिए। ब्रा पहनने से मिल्क प्रोडक्शन बंद नहीं होता है, बट हाँ आप कोई भी टाइट क्लोथिंग, टू मच ऑफ टाइट क्लोथिंग मत पहनिए। यू कैन वेयर अ टिपिकल ब्रेस्ट फीडिंग की टिपिकल रिलैक्स ब्राज आती हैं, आप वो पहनिए। वाइल्ड ब्राज एंड अदर थिंग्स मैं सजेस्ट नहीं करती। कॉटन की नाइस रिलैक्स ब्रीदेबल ब्राज, यू कैन वेयर देम। एक्सरसाइजेज वी कैन डू आफ्टर सी सेक्शन, ये सब आप कर सकती हैं, बट डिपेंड करता है कि आपका कितना टाइम हुआ है सी सेक्शन के लिए। हाँ, हाथ की एक्सरसाइज डेफिनेटली आप कर सकते हैं, बट स्क्वाटिंग मैं सजेस्ट नहीं करती। जो मैंने वॉल पे ऐसे करके आपको नीचे बिठाया था, मैं वो सजेस्ट नहीं करती हूँ। खड़े होने की जितनी भी एक्सरसाइज है वो कर सकती हैं, जो लेट के मैंने बताई है वो भी आप कर सकती हैं, लेकिन स्क्वाटिंग अभी आप नहीं कर सकती हैं, बिकॉज वो मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ। ब्रेस्ट फीडिंग, यस, अगर आप रात को करती हैं तो डेफिनेटली हेल्प करेगा। उससे आपका जो फीडिंग का जो प्रोसेस है वो आपका बेटर हो जाएगा, एंड आपकी ब्रेस्ट मिल्क बनना ज्यादा बेटर हो जाएगा। आप कर सकती हैं स्टोर। सो दिस इज अ क्वेश्चन, फीडिंग टाइम जो ब्रेस्ट से जो मिल्क निकलता है वो स्टोरेज करना चाहिए। सी दैट्स योर पर्सनल चॉइस। आप अगर दोनों ही ब्रेस्ट से एक साथ उसको फीड, मतलब पूरा कंप्लीट होना चाहिए, एक ब्रेस्ट पूरी खाली होनी चाहिए, उसके बाद ही दूसरे पे जाएं। अगर आपको लगता है कि दूसरी वाली ब्रेस्ट काफी हैवी हो रही है, खाली करने की जरूरत है, तो डेफिनेटली आप उसको स्टोर कर सकती हैं। मैंने आपको स्टोरेज का तरीका बताया है। आप 4 घंटे तक नॉर्मल टेम्परेचर पे रख सकती हैं, उसको फ्रिज में रख देंगी आप, तो आप ज्यादा लंबे टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। सो अगर आपके यीशा शाह जी का क्वेश्चन है कि सेकेंड प्रेगनेंसी में, फर्स्ट प्रेगनेंसी में उनको क्रैक्स हो रहे थे और ब्लड आता था, तो जैसे मैंने आपको बताया यीशा जी, अब तक आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपकी फीडिंग पेनफुल है तो वो डेफिनेटली गलत है। आपको कुछ सही तरीके अपनाने हैं। आप कनेक्ट कर सकती हैं अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, जो आपकी मदद करेंगे इसमें। Is there anything we can do prior like oil massage? मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ किसी भी तरीके का ऑयल मसाज या फिर कुछ भी। So I don't go for oil massages because it has to be as natural and sterilized as possible. So I think that helps me answer all the questions. Okay, thank you so much everyone to hearing us out, and yeah, I hope हमने आपकी काफी सारी queries sort out करी होंगी, and I hope the session was useful. Thank you so much. See you everyone. When is a parent born? When your world changes in a moment. Nani? Or when the moment is celebrated by all. When you start learning again. Or with a new role. Is it your child's first breath? Or is it just a feeling? Parents are born when they fulfill a responsibility. Your child's umbilical cord blood can provide protection from 80 life-threatening diseases. Keep it safe with Asia's largest stem cell bank, Cord Life. One chance, one choice.